गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड प्रणाम। यू नो मी। अब हमें जानते हैं, कल हम लोग एक क्लास शुरू किए थे अंग्रेजी की, और उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि फंडामेंटल कोर्सेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो कल हम लोग ओरली पढ़े थे कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, कि हमें एक उदाहरण देकर समझाया था। आज हम लोग उसको लिखित रूप में करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख ले, जान ले कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं डेफिनेशन। ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच one language is converted into another, change, changing the actual meaning or the like. Now I want to clear you that the definition is the same. इसका मतलब वही होगा कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके तहत हम किसी भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तन करते हैं और उसके अर्थ को नहीं बदलते हैं। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, सांझ, चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एक्चुअल मीनिंग और द लाइक। यहाँ पर सांझ का मतलब होता है विदाउट, अर्थात के बिना। अब हम इसके बारे में अब आगे जानेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन आर देयर इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात अनुवाद के कितने भाग होते हैं या प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। English is must. Without the knowledge of English, our education is incomplete. So we have to get knowledge in this field. Now we are coming to this point, classification. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण या प्रकार। बेसिकली ट्रांसलेशन कैन बी स्प्लिट। यहाँ स्प्लिट का मतलब होता है बांट देना। स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, अर्थात अनुवाद को हम निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, द ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन। दूसरा क्या है, द लिटरेरी translation. Now we know that there are two kinds of translation. The first one is grammatical translation and the second one is literary translation. Now we are coming to this point that we have to know what grammatical translation is and what literary translation is, because it is very necessary for us to know. Okay, now I am going to explain the definition of both of the points. You have to understand. अब हम लोग जानेंगे अंग्रेजी भाषा में भी और हिंदी भाषा में ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन और लिटरेरी ट्रांसलेशन कहते किसे। द ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन, इसका अर्थ हुआ व्याकरण पर आधारित अनुवाद। डेफिनेशन, the translation
that is done according to the rules of grammar and its usage is said to be the grammatical translation. The Hindi meaning of this given definition of translation is that जो जिस वाक्य का अनुवाद हम अंग्रेजी में व्याकरण के नियमों के अनुसार उसके प्रयोग विधि के अनुसार करते हैं, अर्थात जब हम अनुवाद व्याकरण के नियमों के अनुसार उसके प्रयोग विधि के अनुसार करते हैं कि उसमें सही शब्द का उपयुक्त स्थान कहाँ कैसे क्या होगा, कौन से शब्द का प्रयोग करें, उसे हम ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे Now let's take an example. Now children, see here, be attentive, look at the board. Verbigracia. I am taking one sentence of Hindi. भारत एक महान देश है। What do we notice in the sentence? This is a very simple sentence of Hindi. अब हम इसका अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे। इंडिया is a great country. In the given translation of English, we notice that all the words of this sentence are at the proper place. I mean to clear that the subject is at its proper place, the verb is at its proper place, the adjective is at its proper place, and the noun is at its proper place. All the words are systematically arranged according to the rule of grammar. This is called grammatical translation. Okay, I am taking one more example. मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैं मेहनती हूँ। I am diligent. What do we notice in the sentence? We notice that the subject is at the beginning, and the subject is according to the grammar. The verb is according to the use of grammar, and the object or complement has come according to the rule of grammar. Now we can say that such a translation which is translated or done according to the basic concepts of grammar and its rule is called grammatical translation. Now we are coming to the literary translation. Our second point is the literary translation. इसका शाब्दिक अर्थ हुआ चिल्ड्रेन साहित्यिक अनुवाद, अर्थात वैसे अनुवाद जो साहित्य के नियमों के अनुसार या विचारधाराओं के अनुसार किए जाते हैं। Now let's know its definition. सबसे पहले इसके परिभाषा को जानेंगे, अब बहुत स्पष्ट जानेंगे। The translation that is done according to the literary sense of literature is said to be
the literary translation. I am going to read the given definition clearly so that you may understand well. The translation that is done according to the literary sense of literature is said to be the literary translation. अर्थात वैसे अनुवाद जिसका अनुवाद हम साहित्य के अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार करते हैं, उसे हम साहित्यिक अनुवाद कहते हैं. We are going to take a very simple example because it may happen that most of the children may not understand the simple example of the literary translation. Suppose I am taking one sentence. Bharvi Gracia. वह राजू गाय है. हम इस वाक्य में क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि राजू शब्द जो है किसी व्यक्ति का नाम है. इसके बारे में कहा गया कि गाय है. यदि हम लोग विचार करें, लेट्स कंसीडर, तब ये पाते हैं कि क्या वाकई में राजू कोई गाय है, कोई पशु है? नहीं. गाय की तुलना राजू से की गई है, तो इसमें हम ये पाते हैं कि राजू तो व्यक्ति है, लेकिन उसके स्वभाव जो है, नेचर, क्वालिटी, वो सब गाय की तरह है. अर्थात कि राजू जो है कि बहुत ही जेंटिल स्वभाव का लड़का है. तब उसको ऐसे बना सकते हैं, राजू इज ए काउ. राजू वाकई में गाय नहीं है, लेकिन गाय जैसा स्वभाव है, गाय की उसके साथ तुलना की गई है, तो पाया जा कि गाय के जितने भी गुण हैं वो सब राजू में है. यहाँ एक काउ का मतलब काउ नहीं हुआ. एक काउ का मतलब ये नहीं होगा राजू गाय है. एक काउ का मतलब द सेम क्वालिटी, वर्च्यूज, एबिलिटी और जेंटिलिटी दैट अ काउ पोजेस राजू हैज. ओके. Till now, we have come to know that the fundamental concepts of translation. We have come to know translation, its kinds and the definition of kinds. अब हम लोग की शुरू होती है अनुवाद के नियम. हम जानते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में, भोजपुरी भाषा में और ऐसे अनगिनत भाषाओं में हम लोग बोलते हैं. तमाम भाषाएं जो कि हम लोग बोलते हैं, हम नहीं जानते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे करेंगे. तो हमारे अंग्रेजी के विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने, हेरोफेंट्स ने अथाह सागर नुमा नियमों को दिए हैं. यदि उन सभी नियमों को यदि हम बारीकी से करके अध्ययन करेंगे, तो दो डेज आर नॉट फार अवे दैट वी शैल बी एलिजिबल टू कमांड ओवर दैट लैंग्वेज एंड वी शैल बी फ्रैंक इन दैट लैंग्वेज एंड वी मे compete with others. I am going to start the first rule. The first rule I am going to expound, and starting begins with like that: different steps of translation. अर्थात अनुवाद के भिन्न भिन्न चरण. अनुवाद के भिन्न भिन्न चरण का मतलब ये हुआ कि अनुवाद कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार से शुरू करें कि हम सीखना शुरू करें. ये ना कि हम बनाना शुरू करें और भूलना शुरू करें, बनाना शुरू करें भूलना शुरू करें, ऐसा नहीं है. जो सीख ले के बाद जब तक जीवित रहें तब तक हमारे साथ रहे और हमारा मदद करे, हम योग्य बन सके. तो हम सबसे पहले चर्चा करें रूल नंबर 1. हम बोलेंगे और बोलकर ही लिखेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे. There are such some sentences of Hindi in our Hindi speaking language
which are regarded as affirmative both in the present and past tenses. Don't think that I am nervous. I'm very relaxed mood. Life is a journey and it is a struggle. At every step we have to face struggles. Okay. Now I am starting from beginning. There are such some sentences of Hindi in our Hindi speaking language which are regarded as affirmative both in the present and past tenses. Generally, they begin with the word of Hindi like ek, and end in the verb form hai, tha, the. In the given sentences, there stands a similar common noun and refers to an uncertain subject. We can render का मतलब होता है अनुवाद करना. Render into English as follows. The kingdom of the core structures. The kingdom of the core structures का मतलब हुआ प्रधान बनावट का राजपाट या प्रधान बनावट का सल्तनत. Life is full of struggles, and unless we know how to struggle in a life, we cannot get experience about anything. Success is a word that is needed, but it is not very simple to get. We have to do work to get success in any work. And first we have to remove our nervousness. पहला, in the present tense, there plus an plus similar noun.
दूसरा है इन द पास्ट टेंस। देयर प्लस वाज प्लस एन प्लस सिंगुलर नाउन। अब हम लोग दो ऐसे वाक्य को लेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, कैसे सीखेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे जानेंगे। ठीक। जुम बिस्पिल, इसका मतलब होता है उदाहरण हिंदी में, और अंग्रेजी में अर्थ होता है एग्जाम्पल। जुम बिस्पिल इज अ जर्मन फ्रेज। ओके, जुम बिस्पिल इज अ जर्मन फ्रेज। इट मीन्स इन हिंदी उदाहरण एंड इन इंग्लिश एग्जाम्पल। एक लड़का है, एक लड़की थी। I have written here two different sentences in Hindi so as to prove our rules. Okay? हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि सकारात्मक होते हैं, और वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों टेंस में होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और अंत में है और था लगा रहता है। एक और है और था थी के बीच में एक संज्ञा रहता है जो कि सिंगुलर कॉमन नाउन रहता है। इससे अनिश्चितकर्ता का बोध होता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ये लड़का कौन है, कहाँ का है, क्या नाम है, नहीं जानते हैं। अतः आने वाला इस तरह के वाक्य में आने वाला जो संज्ञा होता है वो अनिश्चितकर्ता का काम करता है। तो कैसे बनाएंगे? यदि वाक्य वर्तमान काल में होगा तो देयर इज से बनाएंगे। देयर इज नाउन को लिखने से पहले इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उसके साथ वॉवेल्स हो रहे कि कॉन्सोनेंट से। ठीक, वॉवेल्स होगी तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट से होगी तो ए का प्रयोग करेंगे। तो लड़का, जाहिर सी बात इसके साथ बी से हो रही है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ए बॉय। एक लड़की थी, हम लोग जानते हैं, हम समझ सकते हैं कि था थी लगा है तो वाक्य पास्ट टेंस में है। ठीक, तो दूसरा का स्ट्रक्चर जो है इसी पर, दूसरे के स्ट्रक्चर पर ये वाक्य बनेगा। तो क्या लिखेंगे? देयर वाज। फिर नाउन को लिखने से पहले ध्यान में देंगे कि उसके साथ वॉवेल से कॉन्सोनेंट से है। वॉवेल से होगी तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट से होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। तो लड़की, तो ए गर्ल जिसकी शुरुआत जी कॉन्सोनेंट से बन गया। तो एक बार फिर से हम बता देते, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक शासक था, हम जानते हैं कि आप बना लीजिएगा। क्यों बना लीजिए जानते हैं क्या? डू यू नो व्हाई? बिकॉज यू हैव कम टू नो दिस रूल। यू कैन टेल मी दैट this sentence deals with the past tense. Why? Simply saying that the verb form tha has come. एक राजा था, कैसे बनेगा? शुरुआत करेंगे देयर वाज। What is the meaning of शासक? The word शासक in English is called ruler, and the word ruler begins with R, that is consonant. That's why a will come. There was a ruler. सभी सब बच्चों को समझ में आया? Are you satisfied? Okay. Now I provided some assignment. Okay, you will translate this sentence and you will try your level best to use in speaking common language where you need. Okay ना?
हम सभी बच्चों को होमवर्क असाइनमेंट दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा और प्रयास कीजिए कि जीवन में सफलता प्राप्त करें। होमवर्क असाइनमेंट। एक जादूगर था। जो शब्द डिफिकल्ट होंगे उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करके उसका अर्थ, उसका वर्ड हम सामने दे देंगे। जादूगर को अंग्रेजी में कहते हैं सोरसरर। एक जादूगरनी थी। जादूगरनी को अंग्रेजी में कहते हैं सोर्सरेस, SORCERESS। एक राजकुमारी है। राजकुमारी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसेस, PRINCESS। एक लाठी है। लाठी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टिक। एक प्रश्न है। प्रश्न बहुत कॉमन शब्द है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन। एक युक्ति है। युक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं आइडिया। एक मुकदमा है। मुकदमा को अंग्रेजी में कहते हैं केस। एक अजगर था। अजगर को अंग्रेजी में कहते हैं पाइथन, जिसका स्पेलिंग PYTHON, पाइथन। एक जंगली भैंसा था। जंगली भैंसा को अंग्रेजी में कहते हैं बाइसन, BISON। एक कुआं है। कुआं तो बहुत साधारण शब्द है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, वेल। एक शूरवीर था। शूरवीर को अंग्रेजी में कहते हैं वॉरियर। नाउ आई होप आप सभी बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे और जो वर्क दिया गया उसको करेंगे और अपना ग्रो योर नॉलेज in English and subscribe this channel, learn a lot more from this channel, and again we shall study some more and we shall continue our work. Thanks for studying under me, and I welcome more and more students to follow this channel. And thank you, meet you again. Alvida.